प्रॉब्लम इज सॉल्व। सो मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट भी इसी तरीके का होता है कि अभी तो रिसोर्स पर्सन सारा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को, पर थोड़ा team members of research and promotion cell of W Kanya Mahavidyalaya and all the respected teachers present over here and dear students. We have arranged this program for you, especially for the students of semester 6 of BA, BSc, BCom and semester 2 of PL. Because as we are all aware that Uttar Pradesh has been among the first few states which implemented National Education Policy 2020. In this document, research and innovation has been identified as one of the thrust areas. So, to achieve this as a goal, this document has introduced research at the undergraduate level, which is being done for the first time because research actually starts from postgraduate level. But first time we are going to undertake, you all students are going to undertake many research projects. This is to encourage innovation and research acumen among the students, which would be beneficial for the society, for the engaged society. So today we have invited Professor Kiran Lata Danwal to deliver this lecture. Let me introduce a speaker to you. Dr. Danwal is Associate Professor in the Department of Education, University of Lucknow. She has an illustrious career in academics, research and administration. She has published and authored 24 volumes and 68 high quality research papers. For her research work, she has visited several countries, including countries of Europe, Canada, South Africa, Thailand, Myanmar, and many more countries. She has been involved in many research projects at various levels. She is recipient of many awards. Some of you are. I'm just summarizing her achievements because there's a long list of achievements. So she has received many awards from state governments and the central government. That includes Shiksha Ratna Award, Shiksha Samman and Uttarakhand Gaurav Award. So, and she has, I am sure that her expertise will help our students, her expert guidance will help our students to not only to score good marks. Those who are in semester 6 टॉपिक तो दिख रहा होगा ना, और बहुत ज़्यादा हम लेक्चर नहीं देंगे आपको, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाएंगे क्योंकि आप जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको ये काम करना है और आपको सबमिट करना है, देन ओनली यू विल गेट योर मार्क्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका टॉपिक है इस पे अभी तक आपका क्योंकि एक्सपोजर नहीं है इसलिए अभी हम बहुत जनरल सी बातें करते हुए और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि आपको मेन करना क्या है। अब हमारी देखिए, आप लोगों ने यू ऑल मस्ट हैव हर्ड अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सुना है, पढ़ा है? नहीं, पूरा पढ़ा है? कितने पेजेस हैं पॉलिसी में? नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो कम से कम पहला और आखिरी पेज तो याद रहता है।
चले कोई बात नहीं, आई जस्ट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, ओके। क्यों आपको आज इस लेक्चर की जरूरत पड़ी, क्यों आपको इस टॉपिक पे चर्चा करनी है। अभी देखिए हम इसको थोड़ा सा उससे चलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो कहा गया है, वो जो ब्रॉडली हम अपने एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड करते हैं, इन जनरल वी डिवाइड आवर एजुकेशन सिस्टम इन 2 सेगमेंट्स, इन 2 एरियाज, ठीक है। फर्स्ट इज योर स्कूल सिस्टम, सेकेंड हायर एजुकेशन। वेरी गुड। तो स्कूल सिस्टम जो होता है, ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन वालों को स्कूल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, नो, यू बिकॉज योर बेस इज स्कूल सिस्टम and without a school system you cannot get anything in your higher education. Whatever I am going to talk about, that is project formulation. Project for whom, project for what, and what is the basis behind this particular project formulation. जो 2 सेगमेंट हैं, फर्स्ट इज स्कूल सिस्टम, उसमें क्या हुआ है चेंज, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अर्लियर आवर एजुकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन 10+2 सिस्टम, ठीक है। आप लोग को भी याद होगा, आप लोग जब इंटरमीडिएट करके आए होंगे तो आप लोग भी ने भी कहा होगा कि हाँ 10+2 करके आए हैं, हम इंटरमीडिएट हो गया है, अब हम ग्रेजुएशन में आए हैं। बट नाउ दिस सिस्टम हैज बीन चेंज्ड। कैसे चेंज हुआ है? 5+3+3+4, ओके। अब यहाँ पे जो सिस्टम चेंज हुआ है, सपोज आफ्टर योर हायर एजुकेशन यू विश टू बी अ टीचर, तो आपको क्या करना होगा? आपको भी तो वो सिस्टम आना चाहिए ना। जब अगर मान लीजिए आप इन छोटे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि सिस्टम तो बदल गया, हम तो पुराने उस पर चल रहे, तो कैसे करेंगे। तो स्कूल सिस्टम का जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया, बट इन हायर एजुकेशन अगेन देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। वो चेंज क्या है? आप में से कोई बताएगा? किसको पता है? सेमेस्टर 5th, यस प्लीज। ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चेंज आया है? बड़ा चेंज। लेकिन अभी आप सेमेस्टर 6 में हो, अभी आपको कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको 2 साल और 1 साल और पढ़ना है। अगर आप 1 ईयर का करते हैं बीए या ग्रेजुएशन जो भी करते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके। और अगर आप गैप लेके फिर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं एजुकेशन, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड, बैठे, थैंक यू। अब देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे क्या कहा गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ओके वेरी गुड, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इज ऑफ 3 years, अर्लियर इट वाज ऑफ 3 years, 1, 2, 3। और खास तौर से आप सब गर्ल्स कॉलेज के हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। हमने 1 साल किया, मन नहीं हुआ, शादी हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है, तो 1 साल हम क्या करते थे, पहले जब करते थे तो हमारी क्या होती थी, अगर छोड़ दिया 1 साल में तो वो 1 साल वेस्ट होता था। बट इन नेशनल एजुकेशन सिस्टम, इन दिस न्यू पॉलिसी, नाउ यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट 1 year ऑल्सो, ठीक है। आपको 1 साल का भी फायदा मिलेगा। फायदा कैसे मिलेगा? यू विल गेट योर सर्टिफिकेट दैट यू हैव डन योर 1 year ऑफ ग्रेजुएशन, तो वो सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल करने पे डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल करने पे डिग्री मिलेगी। अब यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई, उसमें कहा गया है कि आप डिग्री में तो आ गए, लेकिन आपको जब फर्दर एजुकेशन लेनी है तो यू नीड टू डू रिसर्च। अब रिसर्च होती क्या है इसका हमें आइडिया ही नहीं, हम एकदम से पीजी में आ जाते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है कि हम क्या करें अब, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नाउ रिसर्च कंपोनेंट विल आल्सो बी देयर इन एट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपके 3rd सेमेस्टर से वो स्टार्ट हो गया कि आप छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। प्रोजेक्ट का मतलब असाइनमेंट नहीं है,
ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रोजेक्ट का मतलब वहां से अपनी किताबों से इंटरनेट से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। नो, प्रोजेक्ट मीन्स समथिंग डिफरेंट। वो क्या होता है उस पर ही आज हम आपसे बात करेंगे। उसमें ये कहा गया है कि आप सेमेस्टर 6 में थोड़ा सा जो रिसर्च का कंपोनेंट होता है शॉर्ट फॉर्म में उसको करेंगे, और अगर आप 4th ईयर का डिग्री का में आना चाहते हैं देन यू विल डू वन मेजर प्रोजेक्ट। पहले माइनर सीख लेंगे, उसके बाद मेजर प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। और अगर आप 4 साल की डिग्री 4 साल का कोर्स करके डिग्री लेते हैं तो आप डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले सकते हैं और 1 साल में अपना पीजी खत्म करके डायरेक्ट अपने रिसर्च यानी पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। ये इसका बेस है, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। ओके, अबाउट प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। अब इसमें आप देखिए कि सेमेस्टर 6 जो है आपका किसके लिए, दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स, यानी जो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये करें क्यों, हमारा पर्पस क्या है। सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में कॉपी पेन लेके अगर बैठे हैं, वैसे हमारी आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है उसको, है ना, या तो मोबाइल में या मैसेज में उसमें रजिस्टर, लेकिन काम आपके यही आएगा। अब इसको ये ध्यान रखिएगा कि नाउ व्हाट यू हैव टू डू। अब अपने मैम लोग को आप परेशान मत करिएगा, और जो हम बता रहे हैं उसको अगर आप उसी दिशा में करते जाएंगे तो आप सीधे माइनर प्रोजेक्ट अपने मैम लोग को सबमिट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप जो भी पेपर, वट एवर पेपर्स यू आर स्टडिंग इन योर ग्रेजुएशन लेवल, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसमें से आपको जो भी पेपर सबसे अच्छा लगता हो, यानी हम जब पढ़ते हैं कई बार क्या होता है, पेपर हमको क्यों अच्छा लगता है कि हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, कई बार क्यों लगता है कि हमें उसमें इंटरेस्ट आता है, हमें क्यों लगता है क्योंकि हम उसमें करियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कौन से टॉपिक पे, कौन से पेपर में से आप ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, या आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, हम एनसीसी कैडेट थे, आपके यहाँ भी एनसीसी है ना, हम एनसीसी कैडेट थे, हमें बड़ा मज़ा आता था कि काश हमको कुछ इसी से रिलेटेड काम करने को मिल जाए। हम साइकोलॉजी पढ़ते थे, जो मेरा पेपर था साइकोलॉजी पढ़ते, तो उसमें हमसे मैम ने कहा कि आपको कुछ प्रोजेक्ट बना, तो हमने क्या किया, एनसीसी कैडेट्स के ही पर्सनालिटी ट्रेट्स पे प्रोजेक्ट बना दिया। तो क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट इसमें भी और सब्जेक्ट भी, दोनों को हमने मिक्स किया और अपना एक टॉपिक बना लिया। तो अब आपको जो टॉपिक बनाना है वो क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करें, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम वो करते हैं तो हमारा एक शब्द आता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं चर। चर मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो वेरी करता है, ठीक है। वेरी क्या करता है, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा चेहरा, हम एक दूसरे के जैसे तो नहीं है ना कहीं सब लोग वेरी करते हैं। तो जहाँ पे वेरिएशन होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, और वहीं से हम क्या करते हैं, एक अपने रिसर्च को स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना रिसर्च एरिया, इंटरेस्ट, उसको लिखेंगे। आप में से किसी ने लिखा, कोई भी, हाँ, यस, अपना नाम भी बताइएगा और टॉपिक भी, वो अपना एरिया भी। मेरा नाम सरोजनी वर्मा है, मैं बीए 6th सेमेस्टर हिस्ट्री की स्टूडेंट हूं। गुड। मेरा इंटरेस्ट एरिया हिस्ट्री में रहा है क्योंकि मैं मुझे इतिहास पढ़ना काफी अच्छा लगता है। गुड। अब इतिहास तो ले लिया, ठीक है, गुड। अब उसमें से एक स्पेसिफिक एरिया निकालना पड़ेगा कि हम प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे, ठीक है। कई बार होता है कि हमें मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स बहुत अच्छी लगती, फिर हम देखते हैं कि उसमें आइकनोग्राफी वाला पार्ट बहुत बढ़िया है, तो हमने वो टॉपिक ले लिया आइकनोग्राफी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को इलैबोरेट करते हुए, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप लोग सोचिए कि आपको प्रोजेक्ट किस पे बनाना है।
क्लियर है? अब हमने कहा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे होती है, वेरिएबल से। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जब आप लोग बड़े हो जाते हैं और वैसे भी आप लोग के मम्मी पापा की चिंता क्या होती है, मेरी बिटिया की शादी हो जाए जल्दी से, होती है नहीं होती है? तो पेरेंट्स को अगर कोई पिता होता है उसको समस्या कहाँ पे आती है? क्योंकि वहाँ हर जगह एक वेरिएशन होता है, लड़के का खानदान, लड़के की जॉब, लड़के का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, ठीक है, सारी चीजें सब में वेरिएशन है, तो समस्या आती है वहाँ पे। और वो क्या करता है, वो जो पिता होता है वो बहुत रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद वो एक ढूंढता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है हमारी बेटी के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारी जो प्रॉब्लम, यानी हम जो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करेंगे वो क्या है। अब यहाँ पे जो आप स्लाइड देख रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिकेशन शब्द हमने क्यों लिया है, क्योंकि आप अपने एक एक शब्द को पेन डाउन करेंगे। आपका पहला स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स। आपने इंटरेस्ट एरिया लिया, फिर दूसरे नंबर पे आपने वेरिएबल, यानी वेरिएबल से आपको क्या मिलेगा, समस्या। समस्या जैसे कि हिस्ट्री में ये देखना चाहती है तो ये देखेगी कि गुप्त काल के राजाओं का, या हो सकता है कोई भी जो इसका अपना एरिया हो जिसमें इसको लग रहा हो कि उस समय क्या होता था, हम इसको कैसे करेंगे। अभी हम इसको भी बताएंगे कि जो हिस्ट्री में करेंगे उनका डिफरेंट कैसे होगा जो साइंस के लोग हैं और कॉमर्स के लोग हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वट एवर यू आर गोइंग टू पेन डाउन ऑन योर डॉक्यूमेंट, दैट शुड बी वेरी वेरी रेलिवेंट, दैट शुड बी वेरी वेरी अप्रोप्रिएट, और कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी आ गया है और हम क्या करते हैं, फटाफट उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो हमारे लिए काम कर देता है। लेकिन आपके टीचर्स आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, 1 सेकेंड में पकड़ लेते हैं कि चैट जीपीटी से उतार के ले आए हैं। तो वो नहीं करना है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वट एवर यू आर गोइंग टू राइट डाउन, there should be ethical considerations also. Ethical consideration का मतलब है कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। पता चला किसी का पूरा प्रोजेक्ट आपने ले लिया, और ये ध्यान रखिएगा, अब अगर आपने ऐसा किया और कल को आप नौकरी कर रहे हैं और आपके मार्कशीट पे या किसी पे भी किसी ने क्वेश्चन उठा दिया तो 1 सेकेंड में टेक्नोलॉजी पकड़ लेती है कि आपने कॉपी पेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप कोई भी चीज़ को जो प्लेगरिज्म होता है उसको नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो आपको उसकी पेनाल्टी क्या क्या पड़ेगी वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि बी अवेयर, ठीक है, बी अवेयर। और इसीलिए हम 2 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा हम कहते हैं इसको याद रखिएगा कि संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, अपनी एकेडमिक दुनिया में, कि संभल कर रखते हैं कदम इस जहां में, क्योंकि पता है नफस का यहाँ पर हिसाब देना पड़ता है। और एक भी शब्द जो आप लिखते हैं, जो लिखेगा जिसका नाम उसमें होगा, उस टीचर का और उस स्टूडेंट का, दोनों ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो भी आप कर रहे हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट और सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहले टीचर जैसे ज्ञान उड़ेलता था हमारे मस्तिष्क में, वही टेक्नोलॉजी कर रही है, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये अब जमाने बदल गए हैं। जैसे हम पहले कहते थे ना कि पहले हम कहते थे कि हु इज कॉल्ड लिटरेट, द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। अब वो नहीं चलता, अब चलता है द पर्सन हु इज विलिंग टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। लर्न, अनलर्न और रीलर्न क्या करना है? क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें रीस्ट्रक्चरिंग जो हो गई है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। यहाँ पर जो चीजें हैं कि टीचर्स इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इज मोर पर्सनलाइज्ड। अब क्या हो गया है कि जब टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता है, यहाँ पे इंटरेक्शन कैसे कर रहा है? विद थ्रू प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो क्या होता है सबसे पहले कि आपको कोई ना कोई टीचर अलॉट होता है। एक टीचर के अंडर में 3, 4, 5, 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो जो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं दैट दिस इज टोटली पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ये बिल्कुल पर्सनल होता है जो टीचर है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हम
अपने इंटरेस्ट का अगर कुछ कर रहे हैं, हो सकता है टीचर बुरा माने, नहीं, आप टीचर से कहेंगे नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो टीचर पर्सनल इंटरेस्ट लेके आपको 1-to-1 इंटरेक्शन और उसमें प्रोजेक्ट को डेवलप करवाते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको थॉट प्रोसेस, हम कहते हैं ना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। आता है अंतर इसका, आपको पता है? अंतर ये होता है कि हम कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या है, जो कुछ आपको गूगल में मिल रहा है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज क्या होता है, जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से गेन करते हैं और फिर सोसाइटी को फायदा देते हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, यानी आप कोई ना कोई इनोवेशन उसमें कर रहे हैं, और इनोवेशन करते हुए आप क्या करते हैं, फिर उन चीज़ों को अपने उसमें अप्लाई करते हैं। ये पता नहीं भाग रहा है, हाँ। तो आपको यहाँ पे अपने नॉलेज को अपनी थॉट प्रोसेस से एनहांस करना है। और आप थॉट प्रोसेस से अगर नहीं, आप में से सब लोग थोड़ा अपना स्पेशलाइजेशन और टॉपिक सोच के रखें, हम बीच में पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो अब इसके बाद आप देखिए कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे रिसर्च की, रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन की, तो बहुत सारी की कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक अ प्रोजेक्ट इज टोटली रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिसर्च है, यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए? मीन्स यू शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू वर्क इन टीम। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन डू रिसर्च इन टीम्स ऑल्सो, ठीक है? यहाँ पे आपको टीम में नहीं करना है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप सेम टॉपिक लेके उसके एक एक कंपोनेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं, और 4 लोग मिलके उस काम को कर सकते हैं, एक कोलैबोरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। तो टीम में काम करना, फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उसके लिए तैयार रहना, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत इसको नहीं, क्योंकि हमें अभी आपके मेन उस पे दीज आर द स्किल्स यू शुड हैव बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। अब रिसर्च स्किल्स में क्या आता है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी होती है, जो प्लानिंग कैसे करना है, कैसे इन चीज़ों को हमें, क्योंकि जो रिसर्च का सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और चेंज क्या हो गया है इसमें कि बहुत सारे कि रिसर्च जब भी हम करेंगे उसके पीछे कोई ना कोई बेस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स इट शुड बी एम्पिरिकल, इट शुड बी लॉजिकल। ये नहीं कि हमने कुछ भी लॉजिकल का, अगर एक एग्जांपल दें आपको, कई बार क्या होता है, एक रिसर्च हमने पढ़ी, वो फॉरेन की थी, उसमें लिखा था कि जो फीमेल हाई सैंडल्स पहनती हैं उनकी पर्सनालिटी फ्लैट स्लीपर्स पहनने वालों से अलग होती है। टॉपिक उन्होंने कुछ इस तरह का। इसके पीछे लॉजिक मेरे तो समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कुछ लॉजिक हो, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का बेस जरूर ढूंढता है। आप भी जब अपना कोई टॉपिक लेंगे तो ऐसे नहीं कि इलॉजिकल कुछ भी ले लिया। कई बार हम लोग लेते हैं कि पता नहीं अपने आप आगे कैसे बढ़ जाए, कि जब हम कोई भी चीज को, जैसे इसमें वो लिखा है, इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो चीजें हमको लॉजिकल लग रही हैं दूसरे को ना लगे, तो आपको उसका बेस देना बहुत जरूरी है। आप इसमें एक सिस्टम से होना चाहिए रिसर्च, फिर उसमें रेप्लिकेबिलिटी होती है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखिए कि जब हम रिसर्च यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम किस किस तरह की रिसर्च कर, जो ग्रेजुएशन, जो बीए कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट अलग होंगे, जो बीएससी कर रहे हैं उनका अलग होगा, और जो बीकॉम कर रहे हैं उनका अलग होगा। तो यहाँ पर इसको जानना बहुत जरूरी है। जानना कैसे कि यहाँ पे जो हम कह रहे हैं वेरियस टाइप्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी ने एजुकेशन या फिलॉसफी लिया है सब्जेक्ट, हाथ उठाइए, बीए के, हाँ। अब आप लोग देखिए, आप लोग से अगर मान लीजिए हम कहें कि आपको गांधी के शैक्षिक दर्शन पे कुछ काम करना है, तो किस तरह की रिसर्च आप करेंगे, उसको क्या कहते हैं? क्या बीएससी के स्टूडेंट इस टॉपिक पे कर सकते हैं? यस और नो?
नहीं कर सकते, क्यों? अगर हम कहें गांधी जी के शैक्षिक विचारों पे बीएससी के स्टूडेंट्स कुछ काम कर रहे तो कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है? जब हम रिसर्च करते हैं तो हम कभी कभी रिसर्च क्या करते हैं कि किसी के आइडियाज पे वर्क करते हैं, ठीक है? स्वामी विवेकानंद के या किसी के, तो उनके आइडियाज पे जब हम वर्क करते हैं तो वो रिसर्च हमारी कहलाती है फिलोसॉफिकल रिसर्च, ठीक है? फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं, पास्ट की चीजों को, उनके आइडियाज को लेके प्रेजेंट से कोरिलेट करते हैं और फिर कर लेते हैं। तो हमारे जो आर्ट साइड के बच्चे हैं वो इस तरह की रिसर्चेस कर सकते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन योर दैट पर्टिकुलर पेपर्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग, ठीक है? अब ये बताइए, जो आप में से हिस्ट्री के हैं, जैसे अभी बताया, और बाकी अपने कॉलेज है ना, हिस्ट्री में आप किस तरह का टॉपिक ले सकते हैं? आप हिस्ट्री की चीजों को अगर कर रहे हैं तो हिस्ट्री की चीजों का डेटा क्या आपको प्रेजेंट में मिल सकता है? यस और नो? ये अपने आप ही भागता जा रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ बताइए, हिस्ट्री का आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कोई टॉपिक लेना है और उस समय के चीजों को एनालिसिस करके प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या प्रेजेंट में उसका डेटा मिलेगा, उसके रिसोर्सेज मिलेंगे? यस और नो? मिल जाएंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे? वेरी गुड। लेकिन आपको प्राइमरी सोर्सेज मिलना मुश्किल होगा। आपको क्या होता है, सेकेंडरी, किसी के थ्रू आप जान सकते हैं चीजों को। हो सकता है उस समय के कोई व्यक्ति हो, कोई हिस्टोरियन हो, फिर आप उनसे बात करें, तब आपको डेटा मिल जाए, बहुत सारे। यानी अगर आप पास्ट पे कोई काम करते हैं तो वो क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हमारे जो बीए के बच्चे हैं वो लोग पहला वाला और हिस्टोरिकल इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम कई बार क्या होता है कि हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं। अभी कोविड आया था या कोई ऐसी समस्या जो हमारी वर्तमान की प्रॉब्लम्स को वो करती है, उजागर करती है, फिर उस पर हमें वर्क करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन, प्रेजेंट की प्रॉब्लम। आपने देखा कि आजकल के जो यूथ हैं स्मोक बहुत कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं कि जो बच्चे स्मोक कर रहे हैं उनको, उनके व्यक्तित्व को या उनके हेल्थ इश्यूज को रिलेट करके अगर हम कर रहे हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पे वर्क करना, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ओके, फिर इसके बाद साइंस के जो विद्यार्थी हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप फ्यूचर को ज्यादा देखते हैं, ठीक है? आप देखते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, 2 केमिकल्स मिलाएंगे तो इसके रिजल्ट क्या होंगे। तो आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, यानी आप फ्यूचर की बात करते हैं। तो आपकी रिसर्चेस कैसी होंगी, एक्सपेरिमेंटल। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग अलग अलग उसके हैं, डिसिप्लिन के हैं, आपको रिसर्च का टाइप क्या है ये ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा? क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको मेथोडोलॉजी में लिखनी होती है। ये नहीं करना है आपको कि आप कैसे जो भी मन आया वो कर लिया, और आप मान लीजिए प्लांट्स पे कर रहे हैं तो आप उसमें जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सपेरिमेंट, हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा वो हो, लेकिन उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कि जो रिसर्च करते हैं उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिवाइड किया है। और डिवाइड किया है का मतलब क्या है कि रिसर्च ओरिएंटेड और एफिशिएंट, ये जितने भी यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके अंदर ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए और चीजें तो जो भी हैं, क्रिएटिव एंड ऑनेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि किसी और ने कभी काम ना किया हो उस पे। अगर ऑलरेडी कर चुका है तो उसका कोई रेलेवेंस है? नो। जब भी हमने आपको बताया कि हम कम्युनिकेशन इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग आवर आइडियाज टू द सोसाइटी। किस में? प्रोजेक्ट के फॉर्म में। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन में हम 3 अप्रोचेस को अपनाते हैं और कई बार हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना है, पेन डाउन
बता रहे हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं उस पर बाद में आएंगे। कम्युनिकेशन करते समय जैसे हम लोग इसको फन वे में भी ले सकते हैं कि हम जनरली 3 अप्रोचेस अपनाते हैं जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं कोई चीज़। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? whenever you are giving your examinations, what you are doing, you are communicating your answers in the form of answers and in the form of your ideas। ठीक है, कॉपी में लिखते हैं वो भी कम्युनिकेशन है, आपका वर्बल कम्युनिकेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला इसमें 3 अप्रोचेज जनरली हम लोग अपनाते हैं। पहली अप्रोच को हम लोग फन वे में कहते हैं टीवी ब्रांड अप्रोच। और टीवी ब्रांड अप्रोच में क्या होता है कि एक बार एक बच्चा होता है छोटा सा, और वो बच्चा स्कूल से जब आ रहा होता है तो उसकी मैडम कहती हैं कि बेटा कल हम tomorrow I'll take your essay test, go home, prepare one essay and then tomorrow I'll take your test। तो वो घर जाता है, अपनी माँ से कहता है मम्मा मुझे एक ऐसे तैयार करवा दो। तो माँ उसको फुटबॉल मैच में बहुत अच्छा सा एक ऐसे तैयार करवा देती है। फिर वो जब दूसरे दिन जाता है तो वो देखता है कि अरे पेपर में तो फुटबॉल मैच आया ही नहीं, अब हम क्या करें, उसमें टीवी पे आया हुआ था। तो वो लिखना शुरू करता है, बच्चा स्मार्ट था, उसने लिखना शुरू किया मेरे घर में टीवी है, वो वेस्टर्न कंपनी का है। जब हमने उसको खोला तो उसमें फुटबॉल मैच आ रहा था और उसने जितना फुटबॉल मैच याद करके आया था पूरा लिख दिया। लास्ट में लाइट चली गई, धन्यवाद। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें आता है हम वो सब एग्जाम की कॉपी में उतार आते हैं, बाकी हमारा टीचर जाने, एग्जामिनर जाने कैसे नंबर देगा। तो इज दिस करेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग? नो, वी शुड बी फोकस्ड। हमारा जो प्रश्न पूछा गया है, जो हमें उसमें आंसर देना है, यानी जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं हमारा आंसर वही होना चाहिए कि हम अपने कौन से ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रिसर्च में दूसरी हम कहते हैं कि एक बार हनुमान, इसलिए पहली वाली को हम कहते हैं टीवी ब्रांड अप्रोच, ये हमें नहीं अपनानी है व्हाइल राइटिंग आवर प्रोजेक्ट। दूसरा हम कहते हैं हनुमानिक अप्रोच। एक बार लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी को एक कार्य दिया गया था संजीवनी बूटी लाने का। तो जब वो गए तो वहां कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्या किया था, पूरा पर्वत ले आए थे। और उसके बाद रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि अब आपको जो समझ में आए इसमें से जड़ी बूटी ले लीजिए, मुझे समझ नहीं आया था तो मैं पूरा पर्वत ले आया। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तो हम भी ये करते हैं कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है, अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए टॉपिक कोई भी लिया, पर्सनालिटी का लिया, तो हमें पर्सनालिटी में जितना कुछ आता है सब लिख देते हैं और फिर वो एग्जामिनर का हेडेक है कि वो चूज एंड पिक करे और हमको नंबर दे दे। करते कि नहीं करते? तो ये अप्रोच भी आपको नहीं यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट को लिखते समय। ठीक है, यानी सब कुछ नहीं लिख देना है, केवल वो लिखना है जो आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलते हैं। इसके बाद एक थर्ड अप्रोच होती है, उसको हम कहते हैं एंटरप्राइजिंग अप्रोच। एंटरप्राइजिंग का अप्रोच का मतलब है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जब एग्जामिनर आएगा तो प्रोजेक्ट में केवल वही चीज देखेगा वो, और एग्जामिनर्स और जो टीचर्स होते हैं उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि अगर आपने कहीं वो नहीं लिखा होगा तो नंबर आपको कम मिलेंगे, और वो लिखा होगा तो आपको ऑटोमेटिक 80% से ऊपर नंबर मिलेंगे। जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि मेरे प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो न्यू हो, इनोवेटिव हो और सोसाइटी के काम में आए। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे सोसाइटी में वो चीजें काम आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीएससी का कोई विद्यार्थी है, उसने कहा कि हम तो सरदर्द की कोई नई तरह की गोली बनाएंगे। सरदर्द की गोली बनाई और बनाने के बाद उसने उसको अपने बस्ते में रख लिया, तो क्या ये रिसर्च कहलाएगी? नहीं। कब कहलाएगी? जब वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर उसने गोली बना के 10 लोगों को क्या किया, जिनके सर में दर्द हो रहा था उनको वो गोली दी, और गोली देने के बाद उसने देखा कि 4 लोगों का सर दर्द तो ठीक हो गया लेकिन 6 लोगों का नहीं हुआ।
तो वहां से क्या हुआ, फिर से नई रिसर्च स्टार्ट होती है कि जो 6 लोग थे उनका सर में दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी को शुगर था, किसी को बीपी हाई था या किसी के और रीजन थे, इस वजह से वो गोली काम नहीं की। तो अब हम इसमें क्या और चीजें जोड़ें कि वो चीजें सबके फायदे की हो। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आता है कि ये साइक्लिक होनी चाहिए। आप जब प्रोजेक्ट बना लेते हैं और एंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे खत्म होना चाहिए कि अगले के लिए कोई स्कोप उसमें आ जाए, ठीक है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब आप में होंगी देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर रिसर्च। देन नेक्स्ट इज कि जब हम 21st सेंचुरी में रिसर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम लोग पुराने जमाने में करते थे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग घंटों लाइब्रेरी में बैठते थे। आप में से मुझे नहीं लगता है कि आज के जमाने में 1 घंटा 2 घंटा भी कोई लाइब्रेरी में बैठता होगा। है कोई ऐसे स्मार्ट लोग? हाँ, 1-2 जिनको कि शायद पढ़ने का शौक होगा इसलिए बैठे। अदरवाइज व्हेनेवर वी नीड टू वर्क डायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्चिंग मटेरियल इन गूगल ओनली, है ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज आपके प्रोजेक्ट में दिखेगी वो प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट का मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिसर्च वर्क। यानी आप इंफॉर्मेशन को गैदर करके पेन डाउन कर दे रहे हैं, दैट इज नॉट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसको हम बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं कहते हैं। दूसरा, हम उसमें एक फैक्ट को लिया और दूसरी तरह से प्रेजेंट कर दिया, वो भी रिसर्च नहीं होता है। फिर इसमें कि इधर उधर की इंफॉर्मेशन लेके डाल दी, हो गया नहीं। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं, ये रिसर्च नहीं होती है। नाउ वी विल सी दैट व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च में ध्यान रखिएगा कि इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। जब आप रिसर्च को लिखते हैं तो लिखते समय इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, और प्रोसेस में क्या है कि आप देखिए सबसे पहले उसमें गोल्स, उसमें ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ कहा गया है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम में गैप नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में गैप होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम। यानी आप जो जिस उद्देश्य से, जैसे हम लोग एज अ टीचर हमारा काम क्या होता है कि हम जब क्लास में जाते हैं तो हम, मान लीजिए आज हम पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक ले रहे हैं, हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाना है, तो हम 35 या 50 मिनट का क्लास लेते हैं। तो हम पहले से दिमाग में एक माइंड मैपिंग करके जाते हैं या लेसन प्लान बना के जाते हैं कि आज हम इतनी देर में बच्चों को प्रेसिडेंट के बारे में ये पढ़ाएंगे। यानी हमने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर दिए कि हम बताएंगे कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके अधिकार क्या हैं, उनका कैसे कार्यकाल होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम तय करके जाते हैं। लेकिन जब हम क्लास में गए, एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछ लिया और हम अपनी बात से भटक गए और लास्ट में हमने क्या हुआ, आउटपुट क्या निकला कि जो पढ़ाने गए थे वो हमने नहीं पढ़ाया। तो यही चीज जब हम रिसर्च, जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमको ध्यान में रखना है कि जब हम लिखते हैं, अब आप जो लिख रहे हैं कॉपी में, तो सबसे पहले उसमें आइएगा कि सबसे आपको क्या करना है कि अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर देना है कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और लास्ट में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फाइंडिंग्स फॉर्म में क्लियर होने चाहिए। अगर आपके लास्ट में, क्योंकि क्या होता है हम लोग इन दोनों चीजों को मैच नहीं करते हैं, और मैच नहीं करते तो लास्ट में हमारा पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। स्टोरी सुनना अच्छा लगता है आप लोगों को? एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की छोटी छोटी कहानियां होती है। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में सफर कर रहे थे और उनके सामने एक स्मार्ट सा लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, सर जी थोड़ा टाइम बता दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी ओर देखा भी नहीं बताया। फिर दोबारा उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, सर जी टाइम बता दिए, फिर नहीं बताया। तीसरी बार उस लड़के ने गुस्से में कहा,
सर जी थोड़ा टाइम बता दीजिए। और मैं कितनी देर से आपसे पूछा कि आप टाइम नहीं बता सकते, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैं तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं बताऊंगा। टाइम किस लिए नहीं बताऊंगा? क्योंकि अभी तुम पूछोगे टाइम कितना हो रहा है, फिर पूछोगे आप कहाँ जा रहे हैं, फिर मैं कहूँगा मुंबई जा रहा हूँ, फिर तुम पूछोगे कि मैं मुंबई में कहाँ रहता हूँ, फिर तुम मेरे घर आओगे, फिर मेरे घर आके चाय नाश्ता करोगे, फिर मेरे घर में एक यंग सी बेटी है, फिर तुम उसको मूवी लेके जाओगे और कुछ दिन के बाद तुम विवाह का प्रस्ताव लेके आ जाओगे। तो एक बात कान खोल के सुन लो कि जिस लड़के के पास घड़ी नहीं है, ऐसे लड़के से मैं अपनी बेटी का विवाह करते नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या था उस लड़के का टाइम पूछने का और आउटकम क्या निकल के आया। हम लोग प्रोजेक्ट में भी यही करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स तो पूछ लेके चलते हैं, जब डेटा कलेक्ट करने लगते हैं तो वो चीजें हमको मिलती नहीं है, या तो हम ऑब्जेक्टिव बदल देते हैं या जो कुछ हमें मिलता है वो लिख के हम अपना काम खत्म कर देते हैं। ये चीजें आपके प्रोजेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें कैसे अचीव करना है उस पे। अब यहाँ पे आप देखें कि गोल्स हो गए, गोल्स के बाद इसको हम अभी थोड़ी देर में एक के बाद एक और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है प्रोजेक्ट को करने का। उसके बाद हम एक हाइपोथेटिकल वो बनाते हैं, एक प्रस्तावित उत्तर बनाते हैं कि जो हम प्रश्न लेके चल रहे हैं वो हमारे पूरे होंगे। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं और फिर इस तरह से एक सीक्वेंस में ये चीजें चलती जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आती है जब हम इस काम को करते हैं। वैसे तो सीरियसनेस विद्यार्थियों में थोड़ी कम हो गई है कि नहीं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा रील्स देखने लग गए हैं, हमारा माइंड जल्दी भटक जाता है, हम व्हाट्सएप ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सब चीजें क्या है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। इस वजह से जब आप काम करना शुरू करते हैं, अब ये एम बना के आपको चलना है कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट वर्क, उसमें आपको आपका टीचर एक टाइम लिमिट देता है। आपके पास बहुत टाइम नहीं है। जब हम रिसर्च करते हैं तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। रिसर्च करने का मतलब है कि अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो 3-4 साल कुछ भी लग सकता है, लेकिन आप एक माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स हैं कि नहीं, बताइए। इसलिए यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं तो आपको जब स्टार्ट करते हैं तो हमको बिगिनिंग से कुछ बातों का ध्यान रखना है, जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, हम क्या करें, हम टॉपिक कैसे लें। उसमें आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आपके पास सुनने में मजा नहीं आ रहा हो तो बताइए, फिर दूसरी तरह से बताएं, यस और नो। तो फिर बातें नहीं करिए, क्योंकि बातें करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे आप चीजों को। जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम बाउंड वर्क। टाइम बाउंड वर्क का मतलब क्या है, आपके पास केवल 1 से 2 महीने हैं। जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही आपका टीचर आपको कह देता है कि आपको ये काम करना है और इतने दिन में आपको ये सबमिट करना है। ये आपकी लॉन्ग रिसर्च नहीं है, आपको इसमें बहुत इंथुजियास्टिक नहीं हो जाना है कि हम ये काम कर लेंगे। और ये तो आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले ये ध्यान में रखनी है कि हम किस तरह से सोर्सेस को ढूंढें, कैसे। अब इसमें जब आप टॉपिक लेंगे तो टॉपिक में आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ले सकते हैं। आप में से हो सकता है किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता हो, किसी को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता हो, तो यू कैन इंटीग्रेट दैट हॉबी इन योर प्रोजेक्ट ऑल्सो। आपका जो भी विषय है उसमें उसको जोड़ सकते हैं, उसमें अपने इंटरेस्ट एरिया को जोड़ सकते हैं। प्रीवियस रिसर्चेस को आपको देखना होता है कि इस एरिया में कोई और काम हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं, एग्जिस्टिंग थ्योरीज क्या क्या हैं, खासतौर से जब साइंस के विद्यार्थी करेंगे। फिर जो ऑलरेडी, क्योंकि कोई भी चीज बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। आपको जब भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको उससे रिलेटेड रिव्यूज, लिटरेचर, मैगजीन्स की चीजों को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे देन ओनली यू कैन फॉर्मुलेट योर प्रॉब्लम, योर टाइटल। अब टाइटल के लिए भी हम इसको थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। इसमें देखिए जो जो बातें हमने की हैं, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आपका
इंटरेस्ट, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपके रिसोर्सेज। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे बीए के विद्यार्थी कहते हैं मैम मैं तो एजुकेशनल ऐप बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐप बनाने का मतलब क्या है कि आपको पैसा चाहिए, पैसा विद्यार्थी के पास होता नहीं है, तो ये सारी चीजें भी देखनी है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी कितनी है, हमारे पास टाइम कितना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें हमको स्टार्ट करने से पहले देखना होगा। फिर एक्सटर्नल कुछ सोर्सेज होते हैं कि ये रिसर्चेबल होनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, कुछ नयापन उसमें होना चाहिए। इसके अलावा इसमें फिजिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी के साथ साथ उसमें फैसिलिटीज भी हों हमारे पास और उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए। तो ये अभी तक जो हम आपसे बात कर रहे थे दैट वाज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू यहीं पे आता है कि हम अपने टाइटल को कैसे लिखें। अब आप में से जिसने अपना टाइटल सोच लिया हो तो थोड़ा सा बताइए, हम उसी का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। यस, किसी ने टाइटल सोचा है कि हम कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे? किसी ने नहीं? स्पेशलाइजेशन सोच लिया? अभी बताया जैसे उसने कि मैंने हिस्ट्री पे लिया है, हिस्ट्री का कोई टॉपिक जिस पे प्रोजेक्ट बनाओगे, हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है ना, उस पे किस टॉपिक पे वर्क करोगे बताइए। हाँ, कौन हाथ उठा रहा था बताइए, कोई टॉपिक बोलिए। आप लोग अगर ये अभी से नहीं सोचेंगे, आपके टीचर्स इसमें बिल्कुल बॉदर नहीं करेंगे। अगर आप लोग सोच के उनके पास नहीं जाएंगे तो एक टीचर के पास 10 विद्यार्थी होते हैं, फिर अगर वो अपना टॉपिक दे देंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा काम करना। इसलिए आप पहले से सोच के रखिए। जैसे कॉमर्स के विद्यार्थी है, आजकल लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है जीएसटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस तरह के टॉपिक्स ले सकते हैं। बीएससी के स्टूडेंट्स हैं अपने एरिया से रिलेटेड, यस इनकम टैक्स, ठीक है। अब आपने इनकम टैक्स ले लिया, आपने ब्रॉड में से एक नैरो डाउन कर लिया इनकम टैक्स पे। अब इनकम टैक्स को टाइटल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? भाई इनकम टैक्स पे तो प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, यहाँ पे लिखा है रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको क्या करना है, हमने आपसे कहा कि आप एक टॉपिक ढूंढिए जिस पे वर्क करना है। आपने इनकम टैक्स ढूंढ लिया, लेकिन क्या इससे आपकी प्रॉब्लम निकल के आ रही? इनकम टैक्स वहीं पे क्लोज हो गया ना। इसकी समस्या बताइए, समस्या क्या है? जैसे हमने कहा आप लोगों से, मान लीजिए हमने सबको कह दिया कि आपको इंटेलिजेंस पे काम करना है, तो क्या आप कर पाएंगे? आप उसको नैरो डाउन करेंगे, है ना। आप ये कहेंगे कि हाँ हम इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हैं। I will see that those who are having high intelligence, then I will correlate it with the performance। कि जो, या हम ये भी कर सकते हैं कि जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनके इंटेलिजेंस में कितना डिफरेंस होता है, या कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। इस तरह की समस्या लेंगे ना, तो इनकम टैक्स को रिलेट करके आप एक टाइटल बनाइए। ठीक है, जो मन में आ रहा है बोलिए। देखिए यहीं से शुरुआत होगी। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, आप कुछ भी टॉपिक लीजिए, आप जो भी काम करेंगे, हमने आपको बताया वेदर यू आर डूइंग philosophical research, whether you are doing historical, descriptive और experimental, आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको एक अपना टाइटल फॉर्मुलेट करना है जो प्रॉब्लम को बताए। ठीक है, कोई भी टॉपिक आप लीजिए तो सबसे पहला स्टेप यही होगा। अब इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे बताते हैं कि क्या करना है। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सारे मिक्स बैठे हुए हैं, इसलिए हम एक फॉर्मेट आपको नहीं बता सकते हैं। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉमर्स के हैं आपके लिए थोड़ा सा अलग होता है, और साइंस के हैं थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर हम इन जनरल पूरे सर्कल को देखें तो हमारा जो रिसर्च का प्रोसेस होता है, जो प्रोजेक्ट का प्रोसेस होता है, वो इस तरह से होता है। और आप में से जो बहुत होशियार बच्चे हैं उसको अगर बहुत अच्छे से करते हैं तो अपना काम करने के बाद जिनमें इनोवेटिवनेस होती है, क्रिएटिविटी होती है, कुछ नॉवेल्टी होती है आपके प्रोजेक्ट में, तो वो आपका पब्लिकेशन भी हो जाता है और आपका एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। आपके टीचर्स आपको उसमें एनकरेज करते हैं कि इसमें जो गलतियां हैं उसको कैसे ठीक करें और कैसे इस काम को, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, जो भी रिसर्च आप करते हैं, हमने आपको बताया कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है,
टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स, और लास्ट स्टेप क्या होता है, टू डिसेमिनेट दैट पर्टिकुलर रिसर्च। डिसेमिनेशन कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स चैप्टर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अब जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिएगा कि पहला स्टेप होता है, आपने इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नहीं बताया, बताइए कि इनकम टैक्स में आप ये देख सकते हैं कि जो हाई इनकम टैक्स पेयर होते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, या कुछ भी और आप उसको टाइटल ढूंढ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप आपने किया, ब्रॉड एरिया लिया, सेकंड आपने अपना प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, उसको टाइटल दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आपके ये 5 स्टेप चलेंगे आपके प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट को लिखते समय सबसे पहले आप लिखेंगे कॉन्सेप्चुअल फेज। कॉन्सेप्चुअल फेज में आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी अंदर। सबसे पहले इसमें आएगा आपका, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फेज में, नोट कर रहे हैं आप लोग, सबसे पहले आपको हमने क्या कहा, टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद जो वेरिएबल, जो चीजें आपकी हैं, जैसे आप इनकम टैक्स के बारे में या हिस्ट्री का आपने मान लीजिए आइथनोग्राफी पे कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में उसको डिटेलिंग करेंगे। मीन्स यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स होता क्या है, या एजुकेशन के फील्ड में या पर्सनालिटी के फील्ड में आप लोग अगर काम कर रहे हैं, या आईसीटी के फील्ड में, तो उससे रिलेटेड चीजों को पहले आप पूरा पेन डाउन करेंगे। तो पहला इसमें क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल फेज में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये अप्रोक्सीमेट आपका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं आप लोग, इसकी जो पेज लिमिट होती है इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसको बनाना कैसे है। अब पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे की चीज बताएंगे। इसमें आपके लिए जो माइनर प्रोजेक्ट है, मैम आप लोगों को कोई फॉर्मेट तो नहीं मिला होगा ना कितने पेजेस का बनाना है, क्योंकि ये माइनर प्रोजेक्ट है तो आप लोग 50 पेजेस के अंदर इसको बना सकते हैं टाइप्ड फॉर्म में, टाइप्ड, ठीक है, टाइप्ड में। और इसको अगर इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट ऑल्सो, साइंस के लोगों के लिए जरूरी नहीं कि आप 50 पेज, आप 30 पेजेस तक भी बना सकते हैं। जब आप पीजी का वो करते हैं तो उसमें हम लोग 100 to 200 पेजेस भी करते हैं। इसमें और नोट कर लीजिए कि इफ यू आर टाइपिंग, अब ये हाथ से लिखने के जमाने खत्म हो गए हैं, आपको टाइप उसमें करना है। लिखते समय ध्यान रखना है कि टाइम्स न्यू रोमन या कृति देव या जो भी फॉर्मेट आपके टीचर बताते हैं, वैसे जो जनरल कॉमन है। कॉन्सेप्चुअल फेज यानी आपको इसको चैप्टर्स में डिवाइड करना है अपने प्रोजेक्ट को। नंबर 1 आपको क्या लिखना है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में टॉपिक के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारी बातें उसमें आ जाएंगी और अप्रोक्सीमेट आप 10 पेजेस के आसपास उसको लिखेंगे। 10 के अंदर कम भी हो सकता है, 6 से 7 पेज भी हो सकता है। लिखते समय ध्यान रखिएगा टाइम्स न्यू रोमन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी कृति देव, या यू कैन चूज मंगल ऑल्सो। अगर आप यूनिकोड में लिखते हैं तो मंगल पे भी टाइप कर सकते हैं। और इंग्लिश में तहोमा एक और फॉन्ट साइज होता है जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड वो होता है, फॉन्ट होता है इन पे। और फॉन्ट साइज क्या होता है, जो लोग बात कर रहे हैं बाद में इसको फिर एक दूसरे से करेंगे और गलत नोट करेंगे। आप जब इसको लिखेंगे तो 12 पॉइंट पे आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए, 1.5 की स्पेसिंग होगी। सबके प्रोजेक्ट का फॉर्मेट, क्योंकि अगर आपके फॉर्मेट जो आप लिख रहे हैं उसमें अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है और एग्जामिनर अगर उन चीज़ों को जरा भी गौर करेगा तो सीधे सीधे आपके पेज की, जैसे कहते हैं ना कि कहीं भी आप जाइए तो ब्यूटिफिकेशन ना हो वहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करता। अगर आपका हैफजर, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई बार हम ध्यान भी नहीं रखते कि उसके फॉन्ट साइज भी वो करने हैं, ध्यान रखना है, और वैसे ही आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो जब फर्स्ट वो चैप्टर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने वो लिखा, फिर उसके बाद जब आपने ये लिख लिया उसके बाद आप आएंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। मैम थोड़ा टाइम भी बता दीजिएगा कि कितना और है टाइम। ओके,
अब जब आप इसको लिखते हैं तो इसके बाद आप देखिए कि जब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस रिसर्च, दिस प्रोजेक्ट, व्हाई यू आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, तो आप वहां पे लिखते हैं जस्टिफिकेशन या रैशनल कर सकते हैं या सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल वर्ड हम इसलिए बता रहे हैं कि इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन। साइंस वाले थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखते हैं कॉमर्स के रूप से, लेकिन यहाँ पे पर्पस ये होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट एरिया है, लेकिन इस काम को करके क्या सोसाइटी को कुछ फायदा मिलेगा, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसकी सार्थकता आपको लिखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आप इसको क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। ठीक है, आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में आप उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, बस 2 से 3 पॉइंट मैक्सिमम, बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए हैं, जैसे इनकम टैक्स का अगर आप काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स में आप मिडिल क्लास के इनकम टैक्स पेयर्स के बारे में कुछ आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप सिंपल उसमें 2 से 3 तक के ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे। और वो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। अगेन आई विल से दैट इट वेरीज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। ठीक है, सबको एक तरह का नहीं करना है, आप अपने टीचर से कंसल्ट करके कि आपका एरिया कौन सा है, आप उसके हिसाब। फिर आपने सोच लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम साइकोलॉजी में कर रहे हैं, हमने देखना है कि जो बॉयज और गर्ल्स का इंटेलिजेंस होता है, कौन बेटर होते हैं इंटेलिजेंस में। ठीक है, और फिर उनका एकेडमिक अचीवमेंट में क्या फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है, बहुत हाई इंटेलिजेंस के जो लड़के होते हैं उनका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, तो फिर उसके रीजन क्या होते हैं। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनका बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो अभी हम कॉन्सेप्चुअल फेज पे ही चल रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर ऑब्जेक्टिव्स लिखा, हाइपोथेसिस लिखा, जस्टिफिकेशन वगैरह सब लिख चुके हैं। उसके बाद वहां पे हम ये भी करेंगे, इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन क्योंकि आप माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए आपको बहुत इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बस आप ये कह सकते हैं कि हम इसको सीमित रखेंगे। ठीक है, हम अपनी रिसर्च को सीमित रखेंगे, छोटे से एरिया में करेंगे, थोड़े से लोगों पे करेंगे, या हम अब देखिए 2 चीजें यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि हम रिसर्च को करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारी अप्रोच कैसी है, हम कौन सी अप्रोच को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 मेन अप्रोचेस होती हैं रिसर्च की। ठीक है, एक हम करते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं हम उसको, जैसे हमने बताया ना कि हम या तो किसी के आइडियाज पे वर्क करते हैं, या हम पास्ट पे करते हैं, या प्रेजेंट पे करते हैं, या फ्यूचर पे करते हैं। ये 4 हमारे एरिया फिक्स है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती, लेकिन अभी आप उस पर मत जाइएगा क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल के हैं, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है आपको। तो जब आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फेज लिख रहे हैं तो उसके बाद आपको इसको लिमिटेड कर लिया। इसके बाद इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो होता है कि जिस बारे में हम सोच रहे हैं, जैसे हम इनकम टैक्स पे अगर वर्क करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड पेपर्स क्या हमने पढ़े, क्या हमने उसके बारे में कभी कुछ जाना कि नहीं जाना। कई बार क्या होता है कि हमने इनकम टैक्स का टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि हमारे घर में मेरे फादर इनकम टैक्स ऑफिसर थे, मुझे बड़ा मजा आता था देख के। तो ये क्या होता है, हमारे पर्सनल अनुभव के आधार पे हमने वो टॉपिक लिया, क्योंकि हम बीकॉम कर रहे थे, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो वहां पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। अब इन चीजों को देखिए, हमने आपको बताया कि 2 अप्रोचेस हम अपना सकते हैं। अब एक चीज इसमें 2 अप्रोचेस में कि हम या तो इसको सिंपल कॉन्सेप्चुअल पेपर लिख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब कि हम मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर्स एंड देयर प्रोफाइल। ठीक है, हमने अगर ये टॉपिक ले लिया तो हम क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल पेपर पूरा वो कर सकते हैं कि हम अपने आइडियाज, हमने 10 जगह से चीजें पढ़ी, पढ़ने के बाद हमने उसके रिव्यू लिखे कि हमारी बात को कौन कौन रिसर्चर्स पहले से एग्री कर रहे हैं, हमने उनकी चीजों को भी। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल फेज में एक और चीज लिखते हैं कि जो ऑलरेडी लोग हमारे एरिया में काम कर चुके हैं उनका छोटा छोटा सा
एक पैराग्राफ में 2-3 रिव्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर का मतलब होता है हम अपने जो रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड और चीजें हमने क्या पढ़ी है, क्योंकि वही चीज शो करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बार हम लोग जब कॉन्सेप्चुअल पेपर लिखते हैं तो हम अपने पर्सनल अनुभवों को उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। कई बार फीमेल जो होती हैं उनके बहुत सारे ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो कि हो सकता है सोसाइटी में किसी और को पता ही ना चलती हो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अपने पर्सनल व्यूज हैं, हम उस पर भी पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे की चीजों को, लिटरेचर को पढ़ के उसमें वो करके। अभी अगर हम आपसे प्रश्न कहें कि इस दुनिया का जो बेस्ट रिसर्चर होता है वो कौन होता है, बता सकते हैं? बेस्ट रिसर्चर, चलिए आप अपनी माँ के बारे में सोचिए। माँ जो होती है वो बेस्ट रिसर्चर कहलाती है। क्यों कहलाती है? कि आप कुछ कहिए भी नहीं, वो आपके मन की बात समझ जाती है। माँ ने कभी रिसर्च नहीं की हुई होती है कि हमने बहुत डिग्री है, ये है, वो है, लेकिन वो फिर भी बेस्ट रिसर्चर होती है। जैसे एक बहुत बढ़िया सा हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा था कि एक छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, वो माँ के पास आता है और माँ से कहता है मम्मा आई लव यू, तो माँ तुरंत जवाब देती है बेटा आई लव यू टू। फिर बच्चा बड़ा होता है, 15 साल का होता है, फिर माँ के पास आता है मम्मा आई लव यू, तो माँ कहती है बेटा कितने पैसे चाहिए। वो माँ के अनुभव कहलाते कि इस समय बच्चा क्यों आया है मेरे पास। फिर वो 25 साल का होता है, फिर माँ के पास आता है, कहता मम्मा आई लव यू, तो माँ कहती है कौन है वो। फिर वो और बड़ा होता है, 35 साल का होता है, फिर माँ के पास आता है बड़े प्यार से मम्मा आई लव यू, तो माँ कहती है बेटा कहा था ना उस दुष्ट से शादी मत करना। और लास्ट में माँ 55 साल का, 60 साल का बच्चा होता है, फिर आगे कहता है मम्मा आई लव यू, तो माँ कहती बेटा तू कुछ भी कर ले, मैं अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देती। तो ये चीजें उसने रिसर्च तो नहीं की है ना, ये वो अपने अनुभवों से, डेली एक्सपीरियंसेस से सीखती है। यहाँ पर जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इस समय ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत बड़े रिसर्चर नहीं हैं, हमारी नींव पड़ रही है। एनईपी कहती है आपको बिगनिंग करनी है, स्टार्टिंग करनी है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ भी होती है तो हमको सिर्फ प्रयास करना है, हमको सीखना है कि हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। और जब हम फ्यूचर में पीजी लेवल पे और पीएचडी लेवल पे जब हम रिसर्च करेंगे तो हमारा बेस खराब नहीं हो। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेस देने की, यानी आपको अपने अनुभवों को भी उसमें उतारने का पूरा स्कोप मिलता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फेज कॉन्सेप्चुअल फेज। अब देखिए फर्स्ट फेज कॉन्सेप्चुअल फेज का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है बताइए? वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को लेके आपको आगे चलना है, यानी ये पूरा प्रोसेस चलता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप आते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं कि हम इंटेलिजेंस को चेक कर रहे हैं कि लड़के लड़कियों में इंटेलिजेंस में क्या कोई फर्क होता है और उस फर्क का क्या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो आता है, कोई फर्क आता है। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल करें। अब देखिए एक के बाद एक प्रोसेस चल रहा है। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं। क्या हम जब इंटेलिजेंस को देख रहे हैं तो क्या पूरी दुनिया के लड़कों को देखेंगे हम? नहीं ना। हम क्या करेंगे, हम नवयुग में पढ़ रहे हैं, हमारे पास सीमा है कि हमें 1 ही महीने 2 महीने में ही काम करना है। हम हो सकता है कॉन्सेप्चुअल पेपर लिख रहे हो, हम बहुत डेटा वाला काम नहीं कर रहे हो या डेटा वाला कर रहे हैं, तो हमने सीमा बना ली थी ना फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल फेज में। तो वो सीमा बनाने में यहाँ पे हमें क्या तय करना है कि हम केवल 20 ऐसे विद्यार्थियों को लेंगे जिसमें 20 लड़के और 20 लड़कियां होंगे और उनके इंटेलिजेंस को देखेंगे। तो उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली। वो 20 लड़के कहाँ से आएंगे, हमने ये बना लिया कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे होंगे, जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, क्योंकि हमने सब चीजों को सीमित कर दिया है। तो हमने उन लोगों को लिया, तो हमने एक पूरी प्लानिंग की। यानी यहाँ पर जो हमारा प्लानिंग फेज होता है वहाँ हमें ये तय करना है कि हम कौन सी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे। हम
उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम अब देखिए जैसे बीएससी के हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हो सकता है सिगरेट पीने का इफेक्ट उनकी हेल्थ पे देखना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी प्लानिंग करने के बाद कि हमारा मेथोडोलॉजी क्या होगा, हमारा उसके बाद हम किसके ऊपर करेंगे, यानी हमारी पॉपुलेशन में से सैंपल किसको निकाल रहे हैं, ये हम केवल आपको जो एक इसमें दूसरी तरह की अप्रोच है जो हमने आपको बताया ना कि 2 अप्रोचेस से हम प्रोजेक्ट को लिख सकते हैं। पहली अप्रोच है क्वालिटेटिव अप्रोच कि हम उसमें कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, हम उसको अपने हिसाब से कॉन्सेप्चुअल फेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जो कुछ हमने इधर उधर से पढ़ा उसको फॉर्मुलेट करके हम अपना पूरा पेपर 50 पेज का बना सकते हैं, पूरी रिसर्च बना सकते हैं। दूसरा होता है जिसको हम एम्पिरिकल कहते हैं या क्वांटिटेटिव कहते हैं, तो उसके स्टेप्स हम आपको बता रहे कि हमने प्लानिंग कर ली कि हम डेटा ऐसे इकट्ठा करेंगे, इनमें से करेंगे ये सब। उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं दैट इज एम्पिरिकल फेज कि हमने 20+20 मेल फीमेल की इंटेलिजेंस देखी, देखने के बाद हमने क्या करना है, उनका डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे मेरे पास आ रहा है कि ये बच्चों की IQ इतना इतना था, कैसे आएगा बताइए। कोई टेस्ट दे सकते हैं, बैचलर दे सकते हैं, बिने दे सकते हैं, आपने अपना बनाया, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास डेटा आ गया, डेटा आने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। आपके पास 2 सीरीज में आ गया कि मेल थे जो XYZ या 1 2 3 4 20 मेल स्टूडेंट्स का डेटा ये है और 20 फीमेल का डेटा ये है, उसकी हम एनालिसिस करेंगे। हम उसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर हम क्वालिटेटिव फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कुछ नहीं, हम पर्सनालिटी देखना चाहते हैं और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू देखना चाह रहे हैं, यानी क्वालिटेटिव फॉर्म में, तो हमको डेटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जो लड़के हैं उनका खेल के प्रति क्या एटीट्यूड है या उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस क्या है, तो उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्वालिटेटिव फॉर्म में भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग 3 तरह के हैं तो बहुत मिक्स हो जा रही हैं चीजें, क्योंकि हम लोग जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोजेक्ट बनाने का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, कॉमर्स का बिल्कुल डिफरेंट, साइंस का बिल्कुल डिफरेंट। तो आप जब इसको करेंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें कैसे बनाना। अब इसके बाद एनालिसिस करने के बाद आपका यहाँ पे अभी जो डेसिमिनेशन लिखा है इससे अभी आपको मतलब नहीं है। इसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है। जो कुछ भी आपने एनालिसिस किया, आपने रिजल्ट्स के फॉर्म में आपके पास आया। अब ध्यान रखिएगा रिजल्ट के फॉर्म में एनालिसिस और जो कॉन्सेप्चुअल फेज है इसमें कोई कोरिलेशन बता सकते हैं आप में से? कॉन्सेप्चुअल फेज था, उसमें हमने क्या कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स का एनालिटिकल फेज के साथ क्या रिलेशनशिप है? वेरी गुड। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कि जो आपने 4 ऑब्जेक्टिव्स या 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनके आंसर यहाँ पे होने चाहिए। और उनके आंसर किसके बेसिस पे होने चाहिए? आपके जो आपने प्लानिंग की थी, जो आपने डेटा इकट्ठा किया था, जो उसकी एनालिसिस की थी, उसके आधार पे आपकी फाइंडिंग। यानी ये सारी चीजें क्या है, इंटर रिलेटेड है। अगर आप में इसमें से इसमें एक भी स्टेप में गड़बड़ी करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चले हैं वो लास्ट में आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लास्ट है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। आपने सब कुछ कर लिया, रफ में लिख लिया, सब कर लिया। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, हम आप लोगों को वीडियो शेयर कर देंगे, मैम लोग को दे देंगे, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि कवर पेजेस कैसे बनाने हैं आपको। कैजुअल बिहेवियर ग्रेजुएशन लेवल के बाद बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसकी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका? जैसे ही आपकी रिपोर्ट उठाई जाएगी क्या देखते हैं सबसे पहले? कवर पेज, ठीक है। कवर पेज बहुत खूबसूरत सा बढ़िया सा बनाना चाहिए आपको। उसके एग्जाम्पल आप लोग को हम भेजेंगे, देखिएगा। कवर पेज में क्या किस लिए होता है? हम लोग कहते हैं ना कि वी कैन नॉट जज आवर बुक बाय इट्स कवर, लेकिन
यहाँ पर ये चीजें आपको क्या करनी है कि आपकी बाहर का कवर देखते ही पता चल जाए आपने अंदर किया क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं? उसमें आपका टाइटल, ठीक है, फिर उसके बाद किसने किया है इसको, कहाँ पे किया है, यानी आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, आपका इंस्टीट्यूशन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, फिर आपने किसके गाइडेंस में किया है, ये सारी सूचना उस कवर पेज में होनी चाहिए। टाइटल, फिर आपका कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, किसने किया है यानी नेम ऑफ द रिसर्चर, फिर किसके अंडर में किया, नेम ऑफ द सुपरवाइजर, और नीचे आप पूरा अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और उसके नीचे क्या लिखेंगे, सेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? और इसकी आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिंपल फॉर्म में बनाएं, थोड़ा बहुत डिजाइनिंग कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटराइज जो लोग कैनवा और बहुत चीजें जानते हैं, आप लोग इसको खूबसूरत सा बना सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर लाइन भी रहेगा इसमें। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें ये होती हैं, अगर आप इन पे ध्यान नहीं रखते, क्यों? क्योंकि जो आप लोग आज के स्टूडेंट्स हैं, कल को आप नौकरी करेंगे, कल को आप टीचर भी बनेंगे, तो आपके सामने जो बच्चे आने वाले हैं जो पढ़ेंगे, वो जनरेशन अल्फा होगी। वो जनरेशन ऐसी होगी जो बहुत टेक सेवी होगी और उनका काम आप देख लेंगे तो आप लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना आता है। हम लोग होते हैं ना कि बहुत चीजों को सोचते हैं अरे ठीक है चल जाएगा, नहीं, अब इसलिए नहीं चलेगा कि जो लोग आप लोग स्किल्स को आज नहीं सीखेंगे, कल आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। आजकल डिग्री के आधार पे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, फ्यूचर में आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे एक बार हम फ्लाइट में जा रहे थे, छोटा सा बच्चा वो जा रहा हेडफोन में गाने सुन रहा था, हमने उससे कहा बेटा अपना हेडफोन हमें दे दो, हम भी गाने सुनेंगे। तो उसने इतने सरकास्टिक वे में, ओहो आंटी यू डोंट नो दीज आर नॉट हेडफोन्स, दीज आर ईयरफोन्स। यानी वो छोटे से बच्चे के भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम क्या यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इसलिए आपको बता रहे हैं कि यू नीड टू एनहांस योर स्किल्स। और स्किल छोटा सा आप एक एप्लीकेशन में लिखते हैं, उसमें आपकी स्किल दिखाई देती है कि आप कितना नॉलेज रखते हैं, आप कितने काबिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कवर पेज, कवर पेज के बाद नेक्स्ट आप जब पलटेंगे अपनी रिपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई एनी गेस? एक्नॉलेजमेंट, आप आभार व्यक्त करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। हमने आपको बताया कि आप कोई भी रिसर्च को अकेले नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा कोलैबोरेटिव वर्क होता है। आप प्रोजेक्ट बनाने में हमेशा इन चीजों को लिखेंगे। जब आप कैजुअल बिहेवियर करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमारी किसी ने मदद भी की थी। ठीक है, हो सकता है आप अर्चना मैम के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन अर्चना मैम ने आपसे कहा हो कि नहीं आप राशिदा मैम के पास जाके भी थोड़े से पॉइंट्स ले लीजिए, आप दूसरी मैम के पास भी, तो आप ये नहीं भूलेंगे कि आपकी हेल्प करने वाले दूसरे टीचर्स भी थे। ठीक है, आप नवयुग में पढ़ रहे हैं, आपकी प्रिंसिपल कौन है, यानी आपको हर एक को उसमें एक्नॉलेज करना जरूरी है। उसकी एक भाषा होती है, वो इंटरनेट पे सब मिल जाती है, आपके टीचर्स हेल्प करेंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट आप आते हैं, उसमें आप एक सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट ये देते हैं कि जो कुछ भी काम आपने किया है वो आपका अपना काम है। हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें अभी तक हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब सारी चीजें आपकी सॉफ्ट कॉपी में इंटरनेट पे जाती हैं और ये सारी चीजें आपके जो डिजिटल डिपॉजिटरीज होती हैं उसमें आपको दिखाई देती है। आपने कॉपी पेस्ट किया होगा तो आपकी सारी चीजें तुरंत पकड़ में आएंगी, इसलिए कोशिश क्या करनी है, इट शुड बी ओरिजिनल। आप वहाँ पे 3rd नंबर पे लिख के देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि जो कुछ ये काम हमने किया है वो मेरा काम है, ओरिजिनल है और हमने किया है, और उसको आपका टीचर वेरीफाई करता है कि यस दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज डन दिस पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, इसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, जो कुछ आप वो कर रहे हैं, जो इंडेक्स बनाते हैं कि आपने, अब देखिए फिर से हम बताएंगे कि ये जितनी चीजें हमने बताई है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर डिसिप्लिन, इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। आप किस अप्रोच से उस काम को कर रहे हैं, आप केवल कॉन्सेप्चुअल कोई आइडियाज लिख रहे हैं तो उसका फॉर्मेट दूसरा होगा, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं तो उसका दूसरा होगा।
डिवाइड करेंगे चैप्टर्स में। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 में हमने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल आइडियाज सारे लिखेंगे जो आपका टाइटल है। दूसरा कि आप कैसे उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपने उसका डेटा वो किया। अगर आपने क्वालिटेटिव फॉर्म में कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें, आप उसको छोड़ भी सकते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से। फिर आपने उसके बाद उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, क्या फायदा हुआ, क्या हमारी सोसाइटी गेन करेगी और भविष्य में और लोग इससे रिलेटेड और क्या काम कर सकते हैं उसके सुझाव वगैरह सब आप इसमें देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिखने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद हम टेबल ऑफ फिगर्स भी बनाते हैं कि हमने अगर उसमें कोई फोटोज ली हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग फोटोज यूज कर रहे हैं उस फोटो का सोर्स भी नीचे होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम अभी ध्यान रखेंगे तो हम फ्यूचर में रिसर्च करते समय कभी इसको नहीं भूलेंगे। उस सोर्सेस के हमेशा, तो जब टेबल ऑफ फिगर्स आप बनाएंगे तो फोटोज हो, टेबल्स हो, वो सब चीजों को आप लिस्ट बनाते हैं किस पेज नंबर पे कौन सी चीजें हैं आपके। फिर इसके बाद आप आते हैं चैप्टराइजेशन जो आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तक ऐसे कंटिन्यूएशन में चलेगा। और लास्ट में आपका क्या होगा, कंक्लूजन। आपने उसी चैप्टर में लास्ट के चैप्टर में कंक्लूजन, फाइंडिंग्स, ठीक है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, सजेशन सब कुछ लिख दिया। और वो भी हमने आपको बता दिया कि इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आप करेंगे। और लास्ट में आपको रेफरेंसेस लिखने हैं। रेफरेंसेस लिखते समय भी कैजुअल बिहेवियर नहीं आपको करना है। ये नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया और रेफरेंस लिख दिया। आप पूरे अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई नाम दिख रहा है आपको, कोई कंटेंट आप यूज कर रहे हैं तो आपने कहाँ से लिया है। तरीका ये होता है कि जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज लेते हैं तो उसका URL, जानते हैं URL जो ऊपर एड्रेस बार में एड्रेस आता है उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और उसमें उसके आगे लिख दीजिए रिट्रीवल और डेट डाल दीजिए। ये सबसे सरल काम है। उसके अलावा रेफरेंसेस लिखने का भी एक तरीका होता है। रेफरेंसेस लिखने के बहुत से वो हैं, लेकिन आप लोगों के लिए अभी कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप वैसे ही लिखिए। आप सिंपल सा तरीका अपनाइएगा कि जैसे मान लीजिए हमने लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रिंसिपल मैम ने कोई पेपर लिखा है और आप उसको कोट कर रहे हैं अपने रिसर्च में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप पहले उनका सरनेम लिखेंगे, ठीक है, सरनेम यानी उपाध्याय। फिर उनका नाम क्या है, मंजुला। मंजुला में आप पूरा फुल फॉर्म नहीं लेंगे, सिर्फ M लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने वो जो रिसर्च पेपर या मैगजीन में आर्टिकल या जो भी लिखा था उसको कौन से ईयर में पब्लिश किया था, ब्रैकेट में वो लिख देंगे। 2020 में मान लीजिए उन्होंने लिखा। उसके बाद उसका टॉपिक क्या था, बुक लिखी थी तो बुक का टाइटल क्या था, पेपर लिखा था तो पेपर का टाइटल क्या था, ये सारी चीजें आप उसमें लिख देंगे। आर्टिकल था तो आर्टिकल का टाइटल क्या था वो लिखा। वो लिखने के बाद आप कॉमा लगा के सिंपल लिखेंगे कहाँ से पब्लिश हुआ था। आर्टिकल है दैनिक जागरण में छपा है तो वो लिख देंगे, बुक है विनोद पुस्तक मंदिर से है तो वो लिख देंगे, जो भी जहाँ से भी है वो लिखा आपने। और उसके बाद फिर से कॉमा लगा के आप क्या करेंगे, उसका प्लेस कहाँ से वो पब्लिकेशन है, लखनऊ से है, दिल्ली से है, लंदन से है, कहाँ से है, ठीक है। वैसे तो इसका और भी प्रोसेस है, लेकिन आप लोगों के लिए इतना काफी है। बहुत ज्यादा आप और करना चाहें तो पेज नंबर की पर्टिकुलर चीज आपने उस पेज नंबर से तो पेज नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे इतना काफी है। इसके अलावा आपने रेफरेंसेस लिख लिए, लास्ट में आप एक अपेंडिक्स लगाते हैं। अपेंडिक्स का मतलब क्या है, मान लीजिए आप में से अर्चना मैम ने कोई बहुत अच्छा सा वर्क किया था, आपने उसी वर्क के बेसिस पे कोई चीज की, ठीक है, इनकम टैक्स का मान लीजिए आप कर रही हैं और ऑलरेडी अर्चना मैम का उसमें काम था, तो आपने उन्हीं के बनाए हुए टूल को ले लिया और वहां पे आपने लिख भी दिया कि आई हैव यूज्ड या रिसर्चर हैज यूज्ड दैट पर्टिकुलर टूल डेवलप्ड बाय डॉक्टर अर्चना, ठीक। तो अब उस टूल को आपको पीछे लगाना होगा अपनी रिसर्च में या प्रोजेक्ट में, और नहीं भी लगाते हैं तो आप उसका रेफरेंस या डिटेलिंग दे सकते हैं। तो अपेंडिक्स में जो आप लगाना चाहें, वैसे तो जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो फोटोज यूज करते हैं, फोटो मान लीजिए आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने पूरा प्रोजेक्ट लिख दिया, तो आप वो फोटोज भी लगा सकते हैं। तो अपेंडिक्स में आप डिपेंड करता है कैसा आप काम करते हैं, उसको पूरा उसमें लिख सकते हैं। तो ये तो पूरा हमने जो बताया ये है प्रोजेक्ट को लिखने का
एक तरीका सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि अप्रोचेस क्या होती है। अप्रोचेस एक होती है क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें कि हम न्यूमेरिकल वे में क्वांटिफाई करके चीजों को करते हैं, और दूसरी होती है, ये हो गया, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, जिसमें कि हम सिर्फ एनालिटिकल वे में किसी के, जैसे हमने कहा ना कि उसके विचारों को पढ़ के हम उसकी अपनी एनालिसिस, प्रेजेंट में उसकी क्या रेलेवेंस है, ये वो, इन सब पे वर्क करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव। कई बार क्या होता है कि हम दोनों को मिक्स भी कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रायंगुलेशन, मिक्स करके कि कहीं पे थोड़ा डेटा वाला काम हो रहा है, कहीं पे हमने इंटरव्यू वगैरह लेके उन चीजों को कर लिया, तो ऐसे करके। अब ओवरऑल यहाँ पे इन चीजों को आज हम वाइंड अप करते हैं। ओवरऑल आप देखें कि जो आपको करना है उसमें ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट हमारा माइनर प्रोजेक्ट है, इसमें आप चीजों को अपने अनुभव के आधार पे, लेकिन लॉजिकल वे में, फिर इसमें आप सोशल इश्यूज पे, फिर आप इसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं एक्सपेरिमेंटेशन के वे में, हर तरह से इन चीजों को कर सकते हैं। और लास्ट में बस अपनी बात को हम, क्योंकि ये टॉपिक इतना ब्रॉड है कि एक दिन में शायद इसमें सब कुछ बताना संभव नहीं है, तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी कुछ लाइनें हम बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी पोएम है, इस पोएम को अवार्ड भी मिला था। उसमें वो कहता है, जब हम आपसे कहते हैं ना प्रोजेक्ट बनाना है, रिसर्च करना है, तो ये सारी चीजें हम उसमें उन पंक्तियों में कहा गया है कि वी स्टार्ट डाइंग स्लोली, हम धीरे धीरे मरने लगते हैं यदि हम पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं। इफ वी डू नॉट रीड बुक्स, वी स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ वी डू नॉट ट्रैवल, यदि हम भ्रमण नहीं करते हैं, यदि हम अपने जीवन की ध्वनियों को नहीं सुनते हैं, और यदि हम अपनी या दूसरों की प्रशंसा करना नहीं जानते हैं। वी स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ वी डू नॉट रीड बुक्स, इफ वी डू नॉट travel, if we do not listen the sound of our life, and if we do not know how to appreciate others। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं, कहीं ना कहीं आपको अनुभव सिखा रही हैं। आप कितना ही इंटरनेट पे वो कर लीजिए, आपको व्यक्तित्व देखना है, किसी का प्रोजेक्ट करना है, इनकम टैक्स का देखना, आपको हिस्ट्री जानना है, आप कभी भी सिर्फ इंटरनेट के सहारे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप फेस टू फेस। इन चार चीजों का मतलब क्या है, मीन्स यू नीड टू डू सोशलाइजेशन, यू नीड टू डू फेस टू फेस इंटरेक्शन विद योर टीचर्स, with your colleagues, with your batchmates, then only you can do a good research. So thank you everyone, and if you have any questions, you can ask me.